اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم میں منیر شاکر۔ حج کے مقاصد پر بات ہو رہی تھی کہ حج کا مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں اس کا نتیجہ ہے، اس کا مقصد ہے، اس کی غرض و غایت ہے۔ بلا مقصد کوئی کام نہیں، اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ آپ اس پر عمل کریں، اس کی تعمیل کریں اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے اس دنیا میں، ادھر ہی محسوس شکل میں۔ یہ بھی شرط ہے، محسوس شکل میں آپ کے سامنے آئے گا۔ جیسے آپ سودا کرتے ہیں، کوئی سودے میں آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ نفع ہو گیا یا نقصان ہو گیا، کیا ہوا، برابر رہے، کیا معاملہ ہوا، وہ سارا اسی طرح ہے۔ یہ بھی سودا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا۔ سورۃ توبہ کی 111 نمبر آیت میں اسی سودے کا ہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان اور مال کے بدلے جنت کا سودا کر لیا، کہ وہ اللہ کو جان اور مال دیں گے، اللہ انہیں جنت دے گا، سودا کر لیا باقاعدہ۔ اور آگے اس آیت کے آخر میں ہے کہ خوشی مناؤ اپنے اس سودے کی جو تم نے اللہ سے کیا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ سودا بالکل جسے ہم سودا سمجھتے ہیں، اسی طرح یہ سودے بازی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پورے کرنے، اور اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس میں اس کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، تم کرو نہ کرو۔ تو یہ خاص کر اس حج میں نے بتایا، تو اس کے احکامات کا مقصد مدعا کیا ہے، ارکان اسلام کا مقصد اور مدعا کیا ہے؟ ایک امت بنانا ہے، تمام نیشنلزم جو ہے اس کو ختم کر کے، تمام قوم پرستیاں اور نقل و رنگ و نسل یہ وہ سب ختم ہو کر ایک نظریے پر ایک امت بن جانا ہے، جس کا نظریہ ایک ہو، جس کے مفادات اور مقاصد ایک ہو۔ یہ ایسا گروہ انسانوں کا بنانا مقصود ہے قرآن کا۔ یہ ہے حج کا اصل مقصد، اور حج ارکان اسلام کا منتہا ہے، یہاں سب نے ہونا۔ تو یہ میں بات آلریڈی کر چکا ہوں، اور اس میں اس کے مطلب جو فوائد ہیں اس کی بات کی، تو آگے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا حج، ہم بھی حج کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جو قرآن نتائج بتا رہا ہے، کیا وہ پورے ہوتے ہیں؟ کوئی نکلتا ہے اس میں سے کوئی نتیجہ؟ اس زمانے میں دین اپنی اصلی شکل میں موجود تھا۔ کس زمانے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کی بات ہے، یا خلافت راشدہ میں آپ لے لیں وہاں تک۔ اس کے بعد معاملہ دگرگوں ہی ہوتا چلا گیا۔ لیکن جب وہ مذہب میں تبدیل ہو گیا، دین جب مذہب میں تبدیل ہو گیا، بتایا نا کہ مذہب میں کوئی نتیجہ نہیں ہے، آپ کرتے جائیں، جو کام ہے کرتے جائیں، بس اس امید پر آپ کا دل کچھ مطمئن ہے، اور یا آپ اس امید پر کہ آپ کو اس کا بہت سارا ثواب مل جائے گا آخرت میں مرنے کے بعد۔ دین یہ بات نہیں کہتا، نہیں کرتا، وہ نتیجہ بتاتا بھی ہے، اور وہ اس عمل کی وہ کسوٹی ہے، کرائٹیریا ہے، وہ ہوگا تو سمجھیں کہ عمل ہو گیا، ادھر ہی نتیجہ آپ کو، اس کا فائدہ ادھر ہی، اور وہ آپ کے لیے، اللہ کا اس میں کوئی نہیں لین دین، کوئی اس کو نفع یا نقصان نہیں۔ جب مذہب میں تبدیل ہو گیا تو اس کے مقاصد نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ مذہب کرتا یہ ہے کہ دین کی روح، مقصد اور غایت کو فنا کر دیتا ہے۔ مذہب کیا کام کرتا ہے؟ فرق بھی سمجھتے جائیں مذہب اور دین کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایک ہی بات ہے، کان ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے پکڑ لو۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ زمین آسمان کا فرق ہے اس میں۔ چیز اسے سازش کہتے ہیں جس کی سمجھ نہ لگے۔ مذہب کرتا یہ ہے کہ دین کی روح، مقصد اور غایت کو فنا کر دیتا، لیکن اس کے شعار اور مناسب کو اعلیٰ حال ہی برقرار رکھتا ہے۔ وہ ایسے ہی نظر آتے ہیں آپ کو، حج بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے، نمازات بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہی ہو رہا ہے، حالت کیا بدلی؟ کوئی ہوا نہیں۔ اعلیٰ حال ہی برقرار رکھتا ہے، اور ان کی رسمی پابندی پر بڑا زور دیتا ہے۔ ظاہر ہے وہ نامال کی دین میں بھی اہمیت ہے، دین ان پر وہی چیزیں اٹھا کر جو رسمیں ہیں ان پر لگا فٹ کر دیتے ہیں، اور رسم دین کو جاری رکھے گا، بڑا زور دیتا ہے۔ اس سے قوم اس خوش فہمی میں مبتلا رہتی ہے کہ احکام خدا بندی کا اتباع ہو رہا ہے۔ خوش ہیں ہم، نمازی ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آتے ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے زیادہ برا جو نہیں پڑھتے، اگر ان کو اس پر ملال ہے تو وہ اس پڑھنے والے سے زیادہ، یہ پڑھنے والے زیادہ برے بنتے ہیں
है, बर्बादी है बस उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल है। नमाजी हैं, कुरान ये तो नहीं कह रहा कि वो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पर अपनी नमाज से गाफिल है, उसके मकसद से गाफिल है। रस्म अदा कर रहे हैं लेकिन वो जो उसकी चीज है वो मकसद की तरफ नहीं देखते। इस उससे उन्हें एक अकीदतमंदाना इत्मीनान हासिल हो जाता है जो उनके अपने ही दिल का पैदा करदा होता है। इत्मीनान है दिल को। बहुत सारी कुरान पाक की याद, हमने उनके अमाल उनकी नजरों में भले कर दिखाए। शैतान उनके माल उनकी नजरों में भले कर दिखाता है, अच्छे करके दिखाता है, मज़य्यन करके दिखाता है। दुनिया उन नजरों में मज़य्यन कर दी गई है। ये वही बात है, इत्मीनान दिल ये हासिल है जी। मैं इत्मीनान कल्ब जिसे कहते हैं जी, अकीदतमंदाना हासिल हो जाता है जो उनके अपने ही दिल का पैदा करता है, खुद साख्ता होता है। गलत फहमी, खुश फहमी, इसी बिना पर वाम इन रसूम मनासिक की इंतहाई जज्बो अकीदत से पाबंदी किए जाते हैं, ये देखे बगैर कि इनका कोई नतीजा भी बरामद हो रहा है या नहीं। इसी में मजहब की कामयाबी का राज पिनहा है। देख लें आप, किस तरह कोई बात करे तो किस तरह गले को आते हैं, सर को आते हैं, मारने मराने पर लोग उतर आते हैं, कोई बात ही करें। लोग अगर सोचने लग जाएं तो मजहब के मफाद और मकासद खत्म हो जाते हैं। अगर सोच पैदा हो जाए लोगों में तो मजहब समझो खत्म हो गया। इन तसरीहात की रोशनी में आप मौजूदा हज पर निगाह डालें और सोचें कि क्या इससे वो मकासद हासिल होते हैं जिनके लिए इसका इनकाद जरूरी करार दिया गया है। वही की गायत और अंबिया कराम की बेसत का मकसद ये था कि रंग, नस्ल, ज़बान, खून, वतन और कौमियत के इख्तलाफात को मिटाकर जिनकी वजह से नौ इंसानी टुकड़े टुकड़े हो गई है, उसे फिर से एक आलमगीर बरादरी के कालब में डाल दिया जाए। ये था मकसद वही का। इसके लिए एक निज़ाम तजवीज़ हुआ था जिसका मरकज काबा था और जिसके इज्तिमा का नाम हज था। हज का इज्तिमा अब भी होता है और पहले कहीं ज्यादा जोशो खरोश के साथ वसी तौर पैमाने पर इन इज्तिमात आप देखें, इनके लिए हुकूमत वक्त क्या कुछ करती है, कितने इंतजाम किए जाते हैं और वो एक पूरा महकमा इसके लिए वक्फ है। पूरा महकमा, उन लोगों की तनख्वाहें जो इस पर मतलब पैसा खर्च होता है और साल भर वो जारी रहता है और उस पर फिर जो मुश्किलात जो होती हैं और जो ज़र मुबादला खर्च होता है वो सब कुछ इस पर। मकसद क्या है? देखा, सोचा। ये हाजी शिद्दत की गर्मी और दीगर नासाजगार हालात में सफर की सोबात बर्दाश्त करते हैं। इसमें महीनों लग जाते हैं जिनमें वो कोई और काम ही नहीं कर पाते। ये जब जहाज़ों पे जाते थे महीने लग जाते थे, अब हवाई जहाज़ों पर जाते हैं वक्त थोड़ा लगता है, लेकिन जितना भी लगता है वक्त तवानाई रुपया इस सर्फ और इस कदर जान का मशक्तों का हासिल किया होता है। किस तरह लोग पैसे इकट्ठे करते हैं आज के लिए, ये कहानी आपको बताने। एक एक पैसा कर 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 करके लोग कई सालों के बाद कई लोग ऐसे हैं हासिल मतलब फिर जाकर जाते थे। अब तो इतना महंगा हो गया है शायद बेचारे वो भी ये ना कर सके। इन अफराद का जज्बाती इत्मीनान के हमने एक फरीजा अदा कर लिया। महज अफराद का जज्बाती इत्मीनान तो कोई ऐसी खसूसियत नहीं जिसकी बिना पर इस्लाम को एक मुनफरद निज़ाम हयात करार दिया जा सके। ये तो कोई एक जज्बाती इत्मीनान जो आप कहते हैं अपना बनाया हुआ खुद साख्ता, तो क्या इस्लाम के नज़दीक हो सकती है कोई ये एक अहमियत कि इस्लाम ये काम करे? चले जी, वक्ती तौर पर आपका एक इत्मीनान आपको हासिल हो गया। एक ये इस किस्म का इत्मीनान तो तमाम अहले मज़हब अपने अपने तौर पर हासिल कर सकते हैं और कर लेते हैं। बड़ी एक छोटा फिक्रा आप खुद देख लें, सब भी अपनी अपने जाते हैं ज़ियारतों के लिए, दीदार के लिए। अब हिंदू भी जाते हैं पूजा पाठ के लिए दूर दूर, कहाँ वो कश्मीर में उनकी जहाँ, और सिख कहाँ से चलते हैं कहाँ तक आते हैं, वो कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, किस लिए आते हैं? आखिर उनको भी इत्मीनान होता है। वो अपने गुरुद्वारों में या मंदिरों में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? उनकी हाजतें भी उधर पूरी होती हैं। वो तो जो मनाजात करते हैं, मांगते हैं, करते हैं, उनको भी इत्मीनान हासिल होता है, उनके काम भी होते हैं। ये है जी, इतना ही हमारा काम हो रहा है।
बज़ाहिर देखें आप, यही बात बड़ी सख्त लगेगी, नाक बार गुजर गई आप लोगों को अगर, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करें, सोचें कि दीन के ये काम नहीं हो सकते, क्योंकि मकसद ही ना कुछ जामे, कुछ अच्छे फायदेमंद जो है वो ना हो सके। वो खुद ये बात कहता है रात में, दुनिया में बका उसी अमल के लिए जो तमाम नौ इंसान के लिए नफा बख्श हो, मनफत बख्श हो। ये रात की 17 नंबर आयत। अच्छा जी, आगे बात है, ये मजा अपने अपने तौर पर हासिल कर सकते हो, कर लेते हैं। अल्लाह वजी दुनिया के तमाम मुसलमान उसी तरह मुख्तलिफ कौमों और वतनों में मुनकसम हैं जिस तरह गैर मुस्लिम। इन ममालिक और अक़वाम के अफराद हज के इज्तिमा में भी अपने अपने वतनी और कौमी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखते हैं। सब अलग अलग होते हैं, जाते हैं उधर जरूर, इकट्ठे होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। इस तरह ये नमाज है हमारी, सब बंदी कर लें जी, होगी जी, कंधे से कंधा मिला लें, पाँव के साथ पाँव जोड़ लें, तो क्या होता है उससे? अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, वो असर यानी इंफरादी तौर पर होते हैं, उसका कोई मकसद नहीं बनता। मजहबी तफरीक इस पर मुस्तजाद है। कौमों की जो तफरीक है वो अपनी जगह पर, मजहबी तफरीक भी उधर कायम रहती है हज में। क्या बताऊं, आपको भी पता है कितने लोग जाते हैं, वो बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने वहां उनके साथ जमात, उसके उनके साथ नमाज नहीं पढ़ी। सवाल होता है भी वो और मसलक हैं, आपका मसलक और है, तो उनके पीछे कैसे नमाज होगी तुम्हारी? हर तमाम मसालक वाले यही काम करते हैं। ये गैर मुकल्लद हैं इधर अहले हदीस, और उधर ये इमाम शाफी के मालकी हैं, उधर सऊदी अरब में कुदरती इनके नजरियात काफी एक दूसरे मिलते हैं। ये पढ़ लेते हैं बरेलवी, कई नहीं पढ़ते, कट्टर किस्म के जो बरेलवी हैं वो उधर जाकर जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते। हज उनका भी हो जाता है, सबका ही हो रहा है आज, आप अंदाजा कर ले। ये है जी हमारा हज का आलम, ये है कैफियत हमारे इस इज्तिमा की, जिसका मकसद वतनों और कौमियतों के इम्तियाजात को मिटाकर तमाम नौ इंसानी को एक मरकज पर जमा करना होता है। दीन इस्लाम का मकसद, बिलखुसूस हज का मकसद ये था। और देख लें हमारा दीन जब अपनी असली शक्ल में मौजूद था तो मुसलमानों का हज तो एक तरफ, नमाजों तक का इज्तिमा मुखालफिन के दिलों में धड़कन पैदा कर देता था कि ये क्या हो गया, ये इकट्ठे हो गए लोग। अब कैफियत ये है कि कैसे हुकूमतें डरती हैं जो अपने मुखालफिन से इकट्ठे ना हो, कैसे जब दफा 144 लगा देती हैं कि लोग इकट्ठे ना हो जाए। वहां लाखों लोगों का इज्तिमा होता है, कोई फर्क पड़ता है? आगे जिक्र होता है पाकिस्तान क्या कहता है। और नमाज का इज्तिमा इसी तरह यहाँ जो करते हैं, कोई फर्क पड़ता है किसी को? अब गैर मुस्लिमों में भी जमात हिंदुस्तान में पढ़ी जा रही, बरतानिया में पढ़ी जा रही है, अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह पर। क्या क्या होता है? कुछ भी नहीं। अब कैफियत यह है कि मुसलमानों के करीब 1 अरब आबादी के बहरे ज़खायर में, अब 1 अरब या से भी ज्यादा आबादी मुसलमानों की इसराइली मुमलकत की हैसियत खसो खशाक से ज्यादा नहीं। देखने नक्शे पर कितना है। साल साल से लाखों का यह इज्तिमा अरफात के मैदान में रो रो कर अल्लाह से फरियाद करता चला आ रहा है कि गासब और मगदूब अलैह या मखजूब अलैह, ये भी हमारा मसला है। ज़ुआद को ज़ुआद पढ़ना या दुआद पढ़ना, असल में अरब जो करने वाले वो कहते हैं फलां गले के फलां हिस्से से निकले तो ये ज़ुआद पढ़ा जाता है, जैसे पढ़ना है। खैर मेरे जैसे बंदे को क्या पता। गासब और मगदूब अलैह इसराइल का बेड़ा गर्क हो, दुआएं करते आ रहे हैं, और इसराइल है कि मुस्तहकम से मुस्तहकम होता चला जा रहा है। दुआओं पर गौर करना चाहिए। हमारी दुआएं बढ़ती जा रही हैं, पहले से ज्यादा है, क्योंकि हम तादाद में ज्यादा हैं, तादाद में बढ़ते जा रहे हैं ना। आज से 1000 साल कितने थे हज पे जाते, अब कितने जा रहे हैं? पहले से मुसलमान बढ़ गए, उनकी दुआएं बढ़ गई, उनका रोना बढ़ गया, तो ये उनकी दुआएं बढ़नी चाहिए, मजबूत होना चाहिए ना मुसलमानों को। और इसराइल को इतना कमजोर होना चाहिए, वो मुस्तहकम होता जा रहा है, मुसलमान कमजोर से कमजोर तर होते जा रहे हैं। ये है मजहब के हज का नतीजा। अल दीन का हज होता तो इसके सिर्फ ऐलान पर दुनिया की बड़ी से बड़ी गलत कोश कौम का कप कपाने लग जाती। इतना बड़ा इज्तिमा होता, आप देखें जो किसी कभी खिलाफ होते हैं इज्तिमा, जुलूस निकलते हैं, तो वो भी काफी असर डालते हैं। अगर ये इज्तिमा अगर कुरानी इज्तिमा होता, कुरानी हज के मुताबिक इज्तिमा होता, फिर कुफर पर क्या बन जाता। हाँ जी, सिर्फ ऐलान पर दुनिया की बड़ी से बड़ी गलत कोश कौम कमाने लग जाती है।
अब ये उम्मत गैर मुसलमानों की छोटी से छोटी कौमों से डरती और कांपती है। हज के अजीम इज्तिमा में खाली दुआएं मांग कर चली जाती है और यह कहकर अपने आप को झूठा इत्मीनान दे लेती है कि यहूदी मखदूब अलैह कौम है, इसलिए ये तबाह होकर रहेंगे। कमजोर इंसान अपने मुखालिफ को गालियां देकर अपने दिल की भड़ास निकाल लिया करते हैं। यही काम है जी हमारा, दुआएं कर ली, बददुआएं दे दी, मजम्मत कर ली, बस ये काम कर लिया, आपने अपना हक अदा कर दिया। उम्मत की ये हालत है और इसके मजहबी पेशवा इस पर मुसलसल जोर दिए जाते हैं कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज, अरकान इस्लाम की रस्मी तौर पर पाबंदी करते रहें और इनकी गर्ज़ो गायत और मकसूद व मतलूब के मतलब कुछ ना सोचे। सोचना तो है ही नहीं अल्लाह के हुक्म के आगे, क्या सोचना, सोच को ख़त्म कर दो, मफकूद खलास। इसी में हमारी मुख्तलिफ मुमलकतें भी अपना अपना मुफाद मुजमर देखती हैं और मजहबी पेशवाइयत के फ़रोग़ का समान बहम पहुँचाकर उन्हें ताकीद करती हैं। जमातें भी, मजहबी पेशवाइयत भी, उनका भी इसी में मफाद है कि लोग सोचें ना, और जो बादशाहते हैं जिन ममालिक में, वो भी ये चाहते हैं कि लोग सोच पर पहरे लगा दें। डिक्टेटरशिप जहाँ भी है वो यही काम करती है। पाकिस्तान में भी अब यही काम हो रहा है, चीन में यही काम हो रहा है, रूस में भी यही हो रहा है, हिंदुस्तान ने भी यही कर दिया। जब वो सच बोलने लगते थे, जब बोला उन्होंने सच, उन सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया, उनके चैनलों पर पाबंदी लगा दी। तो ये है जी, जो सोच पर पाबंदी लगाना, पहरे लगाना। कोई ऐसा सवाल कर दे तो बंदा कहता है ये ऊट पटांग किस्म के सवाल करना शुरू कर देते हैं, पूछते हैं दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुख्तलिफ दीन का नुकसान कर रहे हैं, ये ऐसी बात होती है। अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं, मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मजाज खानकाही में इसे। खानकाही में क्या बैठे हैं, तस्बीह बे तस्बीह हो रही है, नवाफिल पाल लें, इशराक पाल लें, तहज्जुद पाल लें, जो मर्जी कर लें। तो ये शैतानी सोच है। मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे। इसके पेश नजर इब्लीस ने अपने मशीरों से कहा था, ये हमारी सही पहम की करामत है कि आज, ये हमारी सही पहम की करामत है कि आज सूफी और मुल्ला मलूकियत के बंदे हैं तमाम। है अगला शेर बड़ा अहम है, तवाफ हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या। शैतान इब्लीस कहता है अगर ऐसा शोरूग होगा है, हज पे जा रहे हैं, हजारों लाखों लोग जा रहे हैं, बड़ा गुलगला है लोगों पर, तो कोई नहीं कहता परेशान होने की जरूरत है, तो क्या है, इससे क्या है तवाफ हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या, कुंद होकर रह गई मोमन की तेगे बेनियाम, कुंद होकर रह गई मोमन की तेगे बेनियाम। अबलीस का ये शहर उस वक्त टूटेगा जब ये कौम किताबुल्लाह को अपनी जिंदगी का ज़ाब्ता बनाएगी। अगर उसने ऐसा ना किया, इस कौम ने, तो अल्लाह का ये इंतबा कार फरमा होकर रहेगा। क्या है, ये 47 नंबर सूरज में सूरह मोहम्मद है। वन ताता वल्लो यस्तब दिल कौमन गैरकुम सुम्मा यकूनु अमसालाकुम। बड़ी वाइद वाली आयत है, 38 नंबर आयत है सूरह मोहम्मद की। अगर ये कुरान से इसी तरह रूह गर्दार रहे तो उनकी जगह कोई दूसरी कौम ले लेगी और वो इन जैसी नहीं होगी। क्या होगा, इस कौम की जगह कोई दूसरी कौम आ जाएगी। आगे थोड़ी सी बात कि अल्लाह के वादों की तरह उसकी वाइदें भी अटल होती हैं। अल्लाह कुरान फरमाता है, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। आल इमरान की 9 नंबर आयत में वैसे भी अल्लाह जो कहे, क्या हमारा यकीन नहीं आता कि वैसे ही होगा, वो सच कहता है जो कहता है। तो ये वहीद सुनाई है उसने कि अगर तुम ना तब्दील हुए हैं अपनी इस गलत रवश से, तो क्या होगा, रूह गर्दानी से बाज ना आए तो तुम्हारी जगह दूसरी कौम आ जाएगी, तब्दील कर दिया जाएगा तुम्हें। तरह इसकी वाइदें भी अटल होती हैं, जिस तरह उसके वादे अटल है, ये वईद का भी एक वादा है इसका, ये भी अटल है, ये भी होकर रहेगा। इस इत्तदाल कौमी में जो तबाही आती है वो बड़ी क़यामत खेज होती है। भाइयों ये ना समझो कितनी सी बात इस कौम से दूसरी कौम तब्दील हो जाएगी, ये लगता है ऐसे ही बात, एक चली गई दूसरी नई कौम आई। इस तब्दीली ये क़यामत खेज तब्दीली है, इससे क़यामत बर्पा हो जाती है, ऐसे तब्दील होंगी, ऐसे नहीं कुछ सानहात गुजरेंगे, फिर ये कौम बर्बाद होगी, फिर नई कौम उसकी जगह आएगी। इन्होंने क्या फरमाया, बड़ी क़यामत खेज है
ये तब्दीली इस बात को समझने की कोशिश करें, जिसको ऐसे ही ना समझ लें कि हम तब्दील होकर चले जाएंगे, वो दूसरे कोई कौम आ जाएगी। नहीं, क़यामत खेज ये होगी, ये घड़ी, ये वक्त जो अरसा गुजरेगा एक कौम से दूसरी कौम की तब्दीली में। तो अल्लाह फरमा रहा है कि होगा, अगर तुम्हारी रूहगर्दानी इसी तरह जारी रही कुरान से। अब कुरान ही है असल जो अल्लाह रसूल की चीज अब हमारे पास है। अल्लाह तो वही है जो रसूल के वक्त था, वही अल्लाह अब है। हाँ जी, कुरान भी वही है जो रसूल के पास था, जो रसूल लेकर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, ये बात देखे, नबी नहीं है अब हम में, वो उनका एक वक्त था, अपनी ड्यूटी पूरी करके चले गए। तो ये बात आपके सामने रखना चाहता था कि हमारा हज हम भी करते हैं, लाखों रुपए लगा कर आते हैं। मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि ज़ाय करके आते हैं, करते रहें। मैं आपको असल बात बताना चाहता हूँ, असल हकीकत कुरान के मुताबिक जो है वो मैं करना चाहता हूँ। मेरी पिछली बातें भी, सलाद पर भी मैंने बातें की, तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ये सलाद छोड़ दें, आप पढ़ें, पंजगाना नमाजें आप पढ़ते रहें हैं। जो मैं करता हूँ मुझे ना छेड़े। तो कि मैं मना नहीं कर रहा कि हज पर ना जाए, लेकिन मेरे भाइयों समझो उस चीज को, कुरान के मुताबिक समझो कि हज चीज क्या है, इसका मकसद क्या है, हम जो कर रहे हैं वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो फिर अल्लाह के हुक्म की तामील नहीं हो रही। बस ये बात मैं करना चाहता हूँ। तो बस मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।